وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله العظيم غوث اعظم ومنی سلوساں مددی قبلہ دین مددی کعبہ ایمان مددی انتظار کرم دستمنی عینیگا اے خدا جو خدا پیو خدا دا مددی بگردہ پہ بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستہ دا کشتی وہاں کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معینتی چشتی مدد کن یا معینتی چشتی مدد کن یا معینتی چشتی انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت علی سے بے کسان چار ساسے درد مندم ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی سرورت شہریار گرم تاجدار حرم و بقائے شفاعت شب اسرا کی پونا روشے بزم جنت دانائے سبل اولائے کل ختم الرسل خسرن خوبا سیام لامنگا وجہ کل فقا بلغ اللہ مقنون سر اللہ مقصون عالم ما کرنا وما یکن آبو گلے انبیاء جانو گلے اسفیاء مطلع ہر سعادت مقتع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور مجھے مجتبہ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک مسلماتی بارگاہ فیدس بنام میں جس طریقے سے بڑا مبارک آواز سے میرے ساتھ دل کر پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سب لوگوں کی یہ اللہ عز و جل اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کی محفل ہے آپ سے میری گزارش ہے کہ سب لوگ بیٹھ کر سنیں آپ بھی خاموش والد کے بھی بیٹھ جائیں میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ یہ سب میری بات سن کر کے بیٹھ جائیں گے سب بیٹھ جائیں کوئی کسی کو کچھ نہ کہیں کوئی کچھ نہ کہیں سب بیٹھیں ادھر والے میرے بھائی وہ بھی سب بیٹھ جائیں آپ بھی بیٹھ جائیں اس لیے کہ اللہ رسول کے ذکر کی محفل میں آپ آئے ہیں اگر آپ حضرات جو شوٹنگ کرنے کے لیے آئے ہیں یا اگر آپ کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں اب تو آپ کا کام ہو چکا ہے لیکن اگر آپ اللہ اور اس کے محبوب کے محفل میں آئے ہیں مست کر کے دیکھیے بالکل فرینڈ بنی ہوئی ہے تھوڑی دیر کے لیے آپ ارے بالکل پیسہ بنا دیا ایک مرتبہ شریف پڑے ہوں سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاید یہ حضرات کوئی زبان سمجھتے ہیں یہ میرے بھائی یہ جو بچے کھڑے ہیں یقیناً آپ کے پیروں میں اللہ نے بڑی طاقت دی آپ کھڑے رہ سکتے ہیں بیٹھے ہیں کچھ آداب ہوتے ہیں ادھر والے میرے نوجوان بھی سب بیٹھے بیٹھ جاؤ بیٹا اللہ غصہ کر رہے ہیں بھائی ایک مرتبہ سب عاشقوں کی طرح جھوم جھوم کر درود شریف پڑھنے بات آگے بڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلیہ الکریم و امتہ کریمہ یا اکرم الاکرمین وبارک وسلم سلام و سلام علیکہ یا جد الحسن والحسین
दिन लम्हों में खोना तुझे, शब तक सोना तुझे, दिन लम्हों में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, शर्म नबी खौफ खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं, रिज़्क़े खुदा खाया किया, फरमाने हक डाला किया, शुक्र करम तरसे सजा ये भी नहीं वो भी नहीं, और डर था कि इसियां की सजा अब होगी या रोज़े जज़ा, डर था कि इसियां की सजा अब होगी या रोज़े जज़ा, दी उनकी रहमत ने सदा ये भी नहीं वो भी नहीं। आज की ये महफिल अमरोहा की सरजमीन पर दारुल उलूम अहले सुन्नत उस्मानिया फैज़ान रज़ा के दस्तार बंदी के मौके पर इनेकाद पजीर है, और मेरे बाद आपको एक अजीम हस्ती से उनका खिताब सुनना है। वो थोड़ी देर में हमारे अमीर कायद मुहतरम तशरीफ लाने वाले हैं। जितने वक्त में वो आ रहे हैं, थोड़ी देर के लिए मैंने सूरह तहरीम से आया करीमा के जिस हिस्से की तिलावत की है, अल्लाह तबारक व तआला उसके मुताबिक मुझे हक कहने और आप सबको हक सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। आप लोग सर्दी के इस मौसम में बहुत दूर दूर से और नज़दीक से भी आए हैं। थोड़ी देर आया करीमा पर तवज्जो करें। इस आया करीमा में अल्लाह ने अपने बंदों से और बिलखुसूस ईमान वाले बंदों से खिताब फरमाया। कुरान में कहीं तो पूरी दुनिया के इंसानों से हर सियाह व सफीद से खिताब होता है, लेकिन जब बहुत खास बात होती है, जब बहुत मोहब्बत की बात होती है, जब बहुत प्यार की बात होती है, उस वक्त सिर्फ मोमिनों से खिताब किया जाता है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत यहाँ पर मोमिनों से खिताब फरमा रहा है। क्या खिताब फरमा रहा है? मोमिन मर्दों को और मोमिन औरतों को अल्लाह तबारक व तआला ने दो जिम्मेदारी अता फरमाई है, दो ड्यूटी सौंपी इस आयत के अंदर। मेरा अल्लाह कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने अहलो अयाल को, अपने आप को और अपनी औलादों को जहन्नम की उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। आप तवज्जो फरमाएं, हर मोमिन को, हर ईमान वाले को, हर रसूलुल्लाह के सच्चे वफादार को अल्लाह पाक इरशाद फरमा रहा है कि तुम अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ और अपनी औलाद को भी जहन्नम की आग से बचाओ। और जहन्नम की आग क्या है? जहन्नम की आग किसे कहते हैं? जरा दिल के कानों से मेरी कौम के जवान सुने, इसलिए कि आज हम जहन्नम के अजाब को सुनना नहीं चाहते, आज हम अल्लाह के अजाब के तज़किरे को सुनना नहीं चाहते, मगर सुन लो, कुरान कह रहा है ये जहन्नम क्या है? वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। जहन्नम वो है जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है, यानी कोयले से जहन्नम नहीं भड़काई जाएगी, जहन्नम जैव लकड़ियों से नहीं भड़काई जाएगी, जहन्नम पेट्रोल और पेट्रोलियम से नहीं भड़काई जाएगी, बल्कि फरमाया जा रहा है जहन्नम का ईंधन इंसान और पत्थर है। तो ऐ मोमिनों, चूंकि तुम ईमान लाए हो, अल्लाह तुमसे करोड़ों माओं से ज्यादा प्यार करता है। करोड़ों माएं मिलकर अगर वफर से मुहाल किसी बच्चे की 1 करोड़ माँ हो और 1 करोड़ माएं मिलकर एक बच्चे को जितना प्यार देना चाहे, उससे ज्यादा प्यार अल्लाह अपने बंदों से करता है। माँ अपने बच्चे से जितना प्यार नहीं करती, उससे ज्यादा अल्लाह अपने बंदों से प्यार करता है। बाप अपने बेटे पर जितना प्यार नहीं करता, उससे ज्यादा प्यार अल्लाह अपने बंदों से करता है। और वो मौला फरमा रहा है जहन्नम तो बनाई है, लेकिन तुम्हें नहीं डालना चाहता, क्योंकि तुम मोमिन हो, इसलिए मुतलब्बे किया जा रहा है, तंबीह की जा रही है कि अपने आप को और अपनी औलाद को जहन्नम की आग से बचाओ। क्या मतलब? मतलब ये है कि तुम ऐसे रास्ते पे न चलना जिसकी वजह से तुम्हें जहन्नम में डाला जाए, तुम ऐसी राह इख्तियार न करना जिसकी वजह से तुम्हें जहन्नम में डाला जाए। आइए पहले एक तो हदीस सुन ले कि जहन्नम क्या
जहन्नम का अज़ाब क्या चीज है। अल्लाह अकबर। मेरे आका मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जरा जहन्नम को सुन ले, ये कोई कहानी किस्सा नहीं, ये अपने सच्चे नबी का फरमान है। जिस नबी के कहने पर हमने अल्लाह को एक माना, जिस नबी के कहने पर हमने कुरान को अल्लाह की किताब माना, जिस नबी के कहने पर हमने यौम क़यामत माना, जिस नबी के कहने पर हमने इस्लाम की हक़ानियत को माना, वही रसूल आज़म खुदाए का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह अकबर। जहन्नम की आग का हाल ये है, जहन्नम की आग का हाल ये है कि अगर पहाड़ों को जहन्नम के अंदर डाला जाए तो पहाड़ पिघलते हुए नजर आए, पहाड़ पिघल जाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अब आपके सामने वाज़ी हस्ती तशरीफ ला चुकी है, जिनका जिक्र मैंने शुरू में किया था कि हज़रत इमाम आले वली रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए। मेरी गुफ्तगू तो मुकम्मल हो गई, और जो नसीब बस करके मैं अपनी बात मुकम्मल कर रहा हूँ। आप साथ बैठ जाए, एक बार फिर दुरूद पढ़िए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, लेने वाला, देने वाला, गवाह बनने वाला, लिखने वाला, सबका एक ही गुनाह है, सब एक ही हुक्म में है। और आखिरी बात, दो जुमले अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम व तस्लीम ने फरमाया, जो सूद देते हैं उनके साथ अल्लाह ने ऐलान जंग किया है, अल्लाह जंग का ऐलान करता है। आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या हम किसी दुनिया के लीडर से जंग करें तो क्या जीत सकते हैं? मोहल्ले के कारपोरेटर से झगड़ा करें तो क्या जीत सकते हैं? मुझे बताओ, जब दुनिया के मामूली इंसान से हम जीत नहीं सकते तो सूद का धंधा करने वाले और सूद को प्रमोट करने वाले और सूद को फरोग देने वाले, उनसे अल्लाह ऐलान जंग कर रहा है। और कुरान में अल्लाह ने फरमाया, हम सूद को बर्बाद करेंगे, सूद को हलाक करेंगे, सूद को तबाह करेंगे और तिजारत को बढ़ाएंगे, तिजारत में बरकत अता करेंगे। तो याद रखो, जिसके साथ मेरा अल्लाह जंग का ऐलान करे, उसमें ना कभी बरकत हो सकती है, ना कभी तरक्की हो सकती है, ना कभी कामयाबी हो सकती है। इसलिए आज ही सूद से तौबा कर लो। जो बंदे आज तक इसमें मुब्तला रहे, सच्चे दिल से तौबा कर लो। इसलिए कि जब कोई बंदा तौबा करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तौबा करने वालों की तौबा को कबूल करता है। गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। मैं अपनी गुफ्तगू को इन जुमलों के साथ, अगर मेरी गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो गई तो अल्लाह ताला माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। और मैं गुजारिश करता हूँ, आप बहुत संजीदगी का माहौल बनाएं, इसलिए कि हमारी मेरी गुजारिश है, संजीदगी का माहौल बनाएं। इतनी बड़ी हस्ती आज हमारे स्टेज पर मौजूद है कि ये सिर्फ आलिम नहीं बल्कि आलिम गर्म हस्ती है। सैकड़ों आलिम इनकी सरपरस्ती में बने और हजारों दाइयान दीन इनकी तरबियत से तैयार हुए। ऐसे लोग इनको कहने में शर्माते थे, आज वो आमा कहते हैं माशाअल्लाह। इनकी दावत ऐसी हस्ती आज हमारी महफिल में मौजूद है। आप हज़रात अगर ऐसे ही शोर मचाते रहे, मोबाइल चलाते रहे, मैं आपसे भी और बड़े अदब के साथ हमारे जो मेंबर पर स्टेज पर जो हज़रात हैं उससे भी गुजारिश करता हूँ कि बहुत मुअद्दिबाना आपका शौक है, आपकी मोहब्बत है, हम मोहब्बतों की कदर करते हैं, लेकिन हज़रत की गुफ्तगू बहुत संजीदा होती है और बहुत फिक्रअंगेज़ होती है। आप याद रखिए, पढ़े लिखे लोग जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हज़रत की गुफ्तगू को सुनते हैं, एक एक जुमला बड़े बड़े मुफक्किरीन की ज़बानी सुना दिया कि एक एक जुमले पर एक एक किताब लिखी जा सकती है। ऐसे कीमती जवानी वाले अगर आप संजीदगी का माहौल बनाए आप सुन सकेंगे और इंशाअल्लाह जब बयान हो जाएगा तो बयान के बाद गलत सारे काम हो रहे हैं जाने भी हो सकेंगे। तो मैं नाज़िम साहब से माज़रत करते हुए चूंकि हज़रत की फ्लाइट जो है वो हज़रत को पहुंचना है वक्त पर दिल्ली, तो मेरी गुजारिश आपसे होगी और किताब के बाद इंशाअल्लाह ये दस्तगारबंदी हो जाए और दस्तगारबंदी बहुत सुकून से हो जाए इंशाअल्लाह ताला। और
बैठ जाए तो महफिल कितनी अच्छी लगेगी। असल में क्लासरूम में आप ही बोले, कोई ना बोले भाई कोई यहाँ से, तो दूर से गुजरने वाले को ऐसा लगता है कि जैसे उसको सजा दी जाए। कड़ा सजा रख देने के लिए किया जाता है कि रसूल पाक की महफिल है, यहाँ सजा नहीं है, यहाँ तो मजा ही मजा है। यहाँ भी मजे वहाँ भी मजे होंगे इंशाअल्लाह। मैं उनके दर का भिखारी हूँ फजले मौला से, हसन फकीर का जन्नत में बिस्तरा होगा इंशाअल्लाह। तो बैठ जाए मेरे भाई, बहुत अच्छे हो, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, बैठे, बहुत अच्छा, अल्लाह पाक सजा दिया, बैठ जाए। एक बार सब जरा बुलंद आवाज से अगर सुनना चाहते हो तो रोशनी पड़े बुलंद आइए इस खूबसूरत माहौल में हम हज़रत को जब वो बड़े अदब के साथ दस करते हैं, हज़रत तशरीफ लाए और अपने खिलाफ से हम सबको मुस्तफ़ीज़ और मुस्तनीर फरमाएं। चार इसलिए दुआया कलिमात सुनने और उसके बाद हज़रत तशरीफ लाते हैं। तू मेरे अहद की तस्वीर है मेरे कायम, तू मेरे अहद की तस्वीर है मेरे कायम, उफ़क़ पे लिखी है हिकायत में तेरी, गुबारे इश्क़ पैगंबर की सर पे चादर है, फलक को छूने लगी है ये अज़मतें तेरी। ऐसे खूबसूरत महफिलें बहुत मेहनत के बाद सजती है। क़ारी अमीर साहब और उनके रफ़क़ा ने, दारुल उस्मानिया फैज़ान रज़ा के लोगों ने बड़ी मेहनत की, काविश की। जब ऐसी महफिल सजी, अब आप उसमें जब वो थोड़ा सा शोर करते हैं तो पूरी महफिल का मज़ा किरकिरा हो जाता है। याद रखिए हम लोग तो इंसान हैं और बहुत छोटे इंसान हैं, बल्कि अपनी बात करूँ तो हम बहुत गिरे पड़े लोग हैं। हजर अस्वद जैसी मुकद्दस चीज को छूने के लिए भी इस्लाम कहता है कि किसी को अज़ियत नहीं पहुंचना चाहिए। अगर अज़ियत पहुंचने का अंदेशा इस्तेलाम करके आगे बढ़ जाओ, वो भी सुन्नत है, उसी को उतना ही सवाल है। तो जब जन्नती हजर जिसका यकीनी जन्नती होना साबित है, जिसको हुजूर ने चुना है, जब उसको चुनने के लिए किसी को धक्का नहीं दे सकते, तो फिर हम लोग अभी तो हमारे ईमान पे खाने की भी कोई गारंटी नहीं है, हमारी कोई औकात और हैसियत ही नहीं। हम तो इतनी दुआएं करते हैं कि हमारा खात्मा बिलखैर होगा, तेरी रहमत अगर शामिल है, ये आस लगा कर बैठे हैं। तो अगर हम लोग के लिए आप एक दूसरे को धक्का देते हैं, बहुत अफसोस की बात है। आप अपने लिए भी दुआ करो, हमारे लिए भी दुआ करो कि हमारा भी खात्मा ईमान पे करे, आपका भी करे, लेकिन वो तो यकीनी जन्नती चीज़ है। इसलिए थोड़ा इसका ख्याल करें, महफिल के आदाब सीखें, अपने बड़ों को नाराज न करें, अपने बड़ों को तकलीफ न पहुंचाएं। अहले मिंबर को पूरा खचा कर मिंबर अहले मिंबर से बड़ा हुआ है, हम उनकी बारगाह में भी खिराज पेश करते हैं, उनके मशहूर हैं। ये जो बैठे हुए हैं, एक से एक शुरू हमारा ये एक से एक चारों सूरज अल्हम्दुलिल्लाह, इनमें भी बहुत बड़े बड़े खतीब और मुदर्रिस हैं, लेकिन ये लोग इसलिए नहीं आते कि वो हमारी बात सुने, बल्कि ये हमसे ज्यादा जानने वाले लोग हैं। ये हमारी हौसला अफजाई के लिए और दुआ देने के लिए आते हैं। हम इनके तहफ़े से मशहूर हैं माशाअल्लाह। ये अपना इतना कीमती वक्त निकाल के आते हैं, बहुत सारे फजर पढ़ाएंगे सुबह जाके, बहुत सारे तदरीस की मसनद पर बैठेंगे, फिर भी रात में देर वक्त इसलिए जगते हैं ताकि मसलब की कोई बात करने आया तो चंद उसको दुआ दे दें। मैं सब उलमाए किराम मशाइख का मशहूर हूँ कि वो आज की महफिल में तशरीफ लाए, मोहब्बतों से नवाजा। लेकिन उलमा के अलावा जो लोग शामिल हो गए मिंबर पर, आजकल मिंबर का तकल्लुफ़ एक बड़ा पामाल होता है। उलमा तो संजीदगी से बैठते हैं, लेकिन जो दूसरे उलमा के अलावा आ जाते हैं वो गड़बड़ करते हैं, उससे उलमा का वक़ार मजबूर होता है। तो इसलिए मैं उन हज़रात से गुजारिश करता हूँ कि जो वाकई आलिम नहीं है, उनसे गुजारिश है, दाढ़ी भी उनके जेबों में नहीं है, वो टोपियाँ भी नहीं पहनते, इधर उधर घूमते रहते हैं, आदत के मिंबर पर घुस के बैठते हैं, उलमा को पीछे ढकेल करके आगे बैठते हैं। ये बहुत बुरी बात है। हमें चाहिए कि ये मिंबर सिर्फ उलमा के लिए है, अइम्मा के लिए, इमामों के लिए है, तो ये उन्हीं के लिए मखसूस रखा जाए। हमारे दादा मुर्शिद मुफ्ती आज़म ने अपनी पूरी जिंदगी कभी किसी दाढ़ी मुंडाने वाले को मिंबर से चढ़ने तक नहीं दिया, चढ़ कर उसको उतार दिया। आज हमारे मिंबर का मिजाज ही बदल गया है। इसलिए सब बदनस्मी, उलमा बदनस्मी नहीं करते, जो दूसरे आते वो बदनस्मी करते हैं, उससे उलमा का वक़ार मजबूर होता है। तो मैं गुजारिश करूँगा जो उलमा के साथ दूसरे लोग हैं वो संजीदगी से बैठें, आगे तो मुतारते नहीं लेकिन संजीदगी से बैठें, ताकि आपकी वजह से उलमा का वक़ार मजबूर ना हो। आइए हज़रत का इस्तेमाल करें। नारे तकबीर।